Welcome, friend, again with me in the area of motivation. I do think it about that. Let me to tell it about from my experience, or the thing that is really supposed to be the essence of the life, the thing that really supposed to invokes you, the thing that really supposed to call you, the thing that gives you just clarion call in the name of nation, in the name of individualism, in the name of humanity, whatsoever things are there. I simply want to say it about that. Nearly 35 years I served in the Department of Education. Just in the area of, I can say it about that, just northeast, I can say it about it is Arunachal Pradesh. Whenever election did come, I had been appointed as presiding officer. For the first time when I was appointed, I was really supposed to be puzzled in the sense that I never cast vote before that. Person simply told one of the gentlemen, you Mr. Such and Such, you got your MA English by reading thousands of books, or maybe hundreds of books, and this is simple booklet you go through, and after that there will not be a problem. There is a team actually works, and for the first time when I was given the job, just doing this duty, it was really supposed to be just at the 90-degree hill, or you can say it about that, it was 3-hour journey on foot. Person told it about that you cannot climb, because of the region you are lean and thin, you haven't got habit, but I climbed it fast in the team. Election was over, it was done, it was a new experience. But that is not the thing. But before that, I just let me tell it here. Election has got separate papers, different papers, and a checklist is to be made when the papers is to be deposited to the deputy commissioner officer, or you can say election office. Certainly a checklist is to be made. अब मैं यहाँ आम जनता को समझने के लिए हिंदी में ही बात करता हूँ. चलो मित्रों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ. हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, अमेरिका भी, दुनिया के ढेर सारे देश प्रजातंत्र हैं. भारत का एक अगला स्थान है, और कहते हैं कि भारत जननी है प्रजातंत्र का, है ना. जननी तो है, लेकिन आज जो स्थिति प्रजातंत्र की है वह कहाँ तक जायज है, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है. मैं इसमें कोई भी वो अपना ओपिनियन देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक सच को आपके सामने रखना चाहता हूँ, है ना. क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में जो घटे उसको ही बार बार रिपीट करता जाते हैं. आज ये 21वीं सदी है. 21वीं सदी में हम मशीन एज में जिंदा रहते हैं. मशीन की कोई जाति नहीं होती. हाँ, हो सकता है कि यह खाना बनाने वाला मशीन है, यह वो मशीन है, वह मशीन है, इस तरह सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. एक सज्जन पहुंचे हुए फकीर हैं, और मैं देखता हूँ उन्हें रील पे, लेकिन कभी कभी आश्चर्य होता है. ऐसे भी लोग जो IAS पैदा करते हैं, ऐसे भी लोग जो खुद IAS रहा, ऐसे भी लोग जो खुद टीचर हैं, और वो कहते रहते हैं 3000 साल तक पर्टिकुलर कास्ट ने रिजर्वेशन पाया. ये 75 साल वे क्या ज्यादा है क्या? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये 3000 साल आपने पाए कहाँ से, किसी ने लिखा? क्या ये काल्पनिक है या वास्तविक है? थोड़ा इस पर भी गौर करो मेरे मित्र. अपने जगह को बनाए रखने के लिए कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? और मैं तो कहता हूँ कोई जाति होती ही नहीं. आप गौर करो, स्टोरी ऑफ लाइफ पढ़ो, उसने सीधा लिखा है कि वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेल से आगे बढ़ते गए, उसके बाद हमने अपनी सुविधा के हिसाब से जाति में इसको डिवाइड किया. और मैं फिर से कहता हूँ, ये हमारा शरीर जो है 4 हिस्से में बटा है. माथा ये सबका ब्राह्मण है, हाथ सबका राजपूत है, पेट सबका बनिया है, पैर सबका शूद्र है. आप किस हिस्से को डेवलप करते हो वह आप पे डिपेंड करता है. क्या हम अम्बेडकर को कह सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं. He is well qualified, he knows better than any of the Brahmins. He is above Brahmins. And if you simply carry this much of a thing low, particularly from generation to generation, mind to mind, do you think it about that? Only disruption will be there. Person will be really supposed to be suffering from the thing, and they will be actually just trying their level best to kill one another. And this is how you see it about the Ukraine and Russia war is the result of this type of situation. What for you are actually making to be just segregated in the name of caste, in the name of you can say it about that some narrow-mindedness. In general, we will have to just think it about that you are after all human being. And I simply call that particular fake pacifist who is simply telling a lot of things about the pacifism. I actually consider that call, clarion call, particularly to the poets who is writing about the poetry, particularly related to the very piece you can see here. Does your poetry function? Perhaps not. Because of the reason your lifestyle is actually far different from the very writing poetry of yours here. Unless your thought and unless your practical behavior tally, you cannot say, just make any sort of value of the reformation, value of the this thing and that thing. But I have been deviated from here. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात करता हूँ.
आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक चेक लिस्ट बनाते हैं, और चेक लिस्ट नहीं, एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद देखते हैं क्या सामान खरीदना, क्या सामान नहीं खरीदना, किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उस हिसाब से आप खरीदारी करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, प्रजातंत्र का देश, चुनावों का मौसम, जिसे कह सकते हैं चुनाव उत्सव, प्रजातंत्र का उत्सव, उत्सव कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसका निदान कैसा होना चाहिए, और भी सुंदर होना चाहिए, और कह सकते हैं आम आदमी का लाइफ कैसा होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, दिल्ली का बेटा, है ना, 1,000 रुपये, क्या अपने आप को 1,000 रुपये में बिक्री कर दोगे, है ना। भारत का बेटा 5 किलो राइस, क्या वही आपका अस्तित्व है क्या? क्या आपके हाथ में कम दम कम हो गया? क्या आपके शरीर में जोश कम हो गया? क्या आपके दिमाग में ये कुछ हो गया? एक सर्जन बोल रहा था, एक दारू और एक दारू फ्री। अब फ्री के चक्कर में बेचारा जो नहीं पीने वाला वो भी दारू पीने लग गया। क्या आप चाहते हो वैसे लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेजो, वैसे लोगों को चुनकर राज्यसभा में, लोकसभा में भेजो, जो आपके लिए कुछ भी नहीं सोचता, आपको नशों के जखीरे में रख देता है, आप नशे में चुस्त हो, और आपकी सारी हेल्थ भी जाता है, वेल्थ भी जाता है, जिंदगी भी चौपट हो जाता है। अब मैं वहां से कभी किसी दिन उस पर बात करूंगा, लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हो, कुछ बातों को ध्यान में रखो। नंबर 1, जिस नेता को आप चुनते हो, क्या उसने संविधान पढ़ा है क्या? नंबर 2, क्या वह उस नेता जिसको आप चुनने जाते हो, क्या उसने, कहने का मतलब है उसने कभी भाषण दिया है क्या, खुद लिखा भाषण दिया है, या किसी दूसरे का लिखा भाषण पढ़ सकता है या नहीं, है ना। तीसरा, क्या वह अपनी बातें पार्लियामेंट में रखता है या नहीं। जब वो अपनी बातें नहीं रख सकता तो आपकी बातें बिल्कुल नहीं रखेगा, है ना। चौथा, उसके बैकग्राउंड को देखो, उसने क्वालिफिकेशन लिया है या नहीं, उसके कैरेक्टर कैसे हैं, है ना। और एक सीधा सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, जब एक चौकीदार, नॉट चौकीदार, जब एक, हाँ चौकीदार कह सकते हैं या चपरासी कह सकते हैं, जब उसका हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो क्लास 8 पास मांगते हैं, लेकिन जिसके हाथ में देश का बागडोर दे रहे हैं, क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। आप देखो, जितने भी चेहरे देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, वो कल के राय बहादुर हैं, कल के राय बहादुर आज के राज बहादुर हैं। चोला बदल गया है, पहले मुकुट हुआ करता था, आज मुकुट नहीं, खादी पहन रखे हैं, है ना। इनसे बचो। दूसरी बात, जहां तक मैं देखता हूं, उसके बाद इतना होने के बाद यह भी देखो, हर एमपी और एमएलए को कुछ फंड मिलते हैं करोड़ों में अपने एरिया का विकास करने के लिए। उनसे यह सवाल जरूर पूछो, मंत्री जी और एमएलए जी और कह सकते हैं सांसद जी, आपको इतने पैसे मिले हमारे एरिया में, है ना, आपने क्या क्या किया, है ना। जरूर पूछो, जाति मत पूछो, या उसके और बाकी कुछ मत पूछो, इतना जरूर पूछो। उसके बाद अगर उससे भी नहीं मिलता है तो सरकार का एक नियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक फॉर्म का कीमत है 30 रुपया, और दूसरे फॉर्म में एक सवाल का काम है, एक सवाल का दाम है 30 रुपया। 60 रुपये में आप कुछ भी जानकारी पा सकते हैं इस फॉर्म को उस कंसर्न ऑफिस में दे करके। इतना अगर आप सब मिलकर जागरूक होकर के करते रहेंगे तो हमारा देश बिल्कुल साफ हो जाएगा। कभी किसी घोटाले के बारे में आप नहीं सुनेंगे, कभी किसी कह सकते हैं घूसखोरी के बारे में नहीं सुनेंगे, कभी कह सकते हैं कि कोई दगाबाजी के बारे में नहीं सुनेंगे। आप जिसको चुन के भेजते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचता है? और एक सवाल और, आज़ादी के 75 साल बाद क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन नेताओं को जिनको चुनते हैं वहां तक आपकी पहुंच नहीं है? पहुंच किनकी है? छुड़वैये की। पहुंच किनकी है? ये कह सकते हैं जो दमदार हैं, जिनके पास रसूख है ना। और कभी आपको नहीं लगता 75 साल के बाद भी किसी ऑफिस में जब काम कराने जाते हैं तो कितनी बाधाएं होती है, कितनी अड़चने होती हैं, चप्पल घिस जाती है, आप कोर्ट में आपका केस पड़ा रहता है, महीनों महीनों सालों सालों, मर जाते हो फिर भी उसका फैसला नहीं मिलता है। क्या ऐसे लोगों को चुन के भेजेंगे? नहीं। एक समय आ गया है, आप सारी बातों को छोड़ करके ऊपर बढ़ो। आप मुफ्त में क्यों लेना चाहते हो? काम करो। और मैंने पहले भी कहा, प्रेमचंद का बड़ा अच्छा लाइन है, बिना काम किए अगर खाना खाते हैं तो हम अपराधी हैं, है ना। अगर आप इस तरह से सोचते हो, स्थित हमारा देश और भी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा देश पिछड़ रहा है, हाँ, लेकिन जब सोचता हूँ कि 13 करोड़ लोग बेरोजगार, सड़कों पे लाठी मारी जाती है ना। और मैं एक उपाय और बताता हूँ, लोग तंग आ गए किससे? सेम चेहरे से, सेम लोगों से, जो एक दूसरे का दोषारोपण करते हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। आप विकल्प बनो, ये 13 करोड़ लोग, आप नक्शा बदल सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, आपने दुख देखी है, आपने
कह सकते हैं कि भूख देखी है, आप कह सकते हैं कि आपने अंधेरे में रहा है, आप पैसे के इंतजार करते रहे, लेकिन मनी ऑर्डर नहीं आता है, और बाद में उम्र खत्म हो जाती है, नौकरी नहीं मिलती। लेकिन मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ यही समय है, राइट समय है, आप आइए और नॉमिनेशन फाइल करिए। इंडिपेंडेंट, कोई पार्टी वाला आपको टिकट नहीं देगा, लेकिन इंडिपेंडेंट आप लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है, कौन जानता है कल कल काल के गाल में क्या रखा है, हो सकता है कल का प्राइम मिनिस्टर, कल का मिनिस्टर, कल का MP MLA आप ही बनोगे। 545 वैकेंसी है, बड़ी अच्छी। जीत गए वेल एंड गुड, नहीं जीते तो क्या खोने के लिए, कुछ भी नहीं, घर में बैठे हो, कम से कम रहोगे तो यहाँ रिटायरमेंट का कोई अभी तक तो नहीं है। एजुकेशन के लिए भी कोई लाइन नहीं है। 6 महीना भी अगर MP MLA रह गए तो निश्चित आप माला माल हो जाओगे पूरी जिंदगी। और माला माल होने का केवल हक इन नेताओं का भी नहीं, आप पढ़े लिखे बेरोजगार आप भी हो सकते हो। मैंने जो चेक लिस्ट बताया, इस पर जरूर ध्यान दो। भूल जाओ कि उसकी किस जाति का है, भूल जाओ कि उसकी किस इलाके का है, भूल जाओ कि वह किस भाषा का है, बस इतना याद रखो वो भारतीय है। भारतीय है जो भारत के लिए मर मिट सकता है, भारत के लिए कुछ कर सकता है। और मैं बार बार पूछता हूँ, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है, कहीं आपने देखा है किसी नेता को मरते हुए? नहीं। जब वो नहीं मरता तो आप क्यों मर रहे हो? सैनिक क्यों मर रहा है? दूसरे लोग क्यों मर रहा है? सबको शांति चाहिए। इन शांति के बीच में अशांति पैदा करके लोगों को बंटवारा करने का किसी को हक नहीं, चाहे वो दुनिया का कोई भी नेता हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में शांति हो, दुनिया में मोहब्बत हो। जो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार हो, तो परिवार कैसे जहाँ तकरार है? परिवार कैसे जहाँ खाई और गड्ढा है ना? परिवार तो तभी होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतनी इतनी बड़ी। और मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति ने जितनी दी है वो सबके पेट भरने के लिए एकदम करीब ठीक ठाक है, कहीं ज्यादा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है किसी ने आपके हक को हटा लिया है, आपके हक को उड़ा लिया है, आपको शोषण बना दिया है। और मुझे वर्ड्सवर्थ का वो लाइन बहुत कभी याद आता है, व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। आदमी ने आदमी को क्या बनाया? कुछ नहीं, एक टारगेट, कुछ नहीं, फायदा करने के लिए। आप बिक जाते हो किसमें? दारू के बोतल में। आप बिक जाते हो हड्डी में, आप बिक जाते हो चंद सिक्कों में। अपने आप को पहचानो मेरे मित्र, आप वोट नहीं, आप आदमी हो, चलता फिरता, जिंदा, सांस लेता हुआ। और उसके पास दिमाग भी है, दिल भी है, जो सोच सकता है। बहकावे में बिल्कुल मत आओ, जो सही है उसका चुनाव करो। और मुझे तो कभी कभी लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है। काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काम करने वाले सैनिक हैं, काम करने वाले कामगार हैं, काम करने वाले अलग अलग एक्सपर्ट हैं, ये क्या करते हैं भाई, है ना? कहीं बेकाले तो नहीं बन गए, कहीं बेकाले के चंगल में तो हम नहीं आ गए, है ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस बार जो भी आप करेंगे अच्छे से करेंगे। मुझे इसमें कोई हमारा सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट केवल इतना ही है, हिंदुस्तान हमारा ऐसा हो जहाँ लोग चलता हो तो कहीं शक के दायरे नहीं हो, लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करें। और ये जो झूठ मूठ का, जैसे हमने कहा, इस शरीर को लेकर के एक लेबल लगा करके, एक टाइटल लगा कर झगड़ा करते, उसको बंद करो। और मैंने बाहर एक दिन मीटिंग में हमने पार्क में कहा था, आप कपड़े खोलो सब एक जैसा ही है, आपने खून देखा सबका खून एक जैसा ही है, सब एक जैसे ही जब दिखते हो तो टिक्का लगा लिया तो लड़ाई करने लगते हो, तो टोपी पहन ली तो लड़ाई करने लगते हो, और जब पगड़ी लगा लिया तो लड़ाई करने लगते हो। मेरे मित्र, इसे बोलो, है ना? और यह मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी आदमी अमृत पी करके नहीं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जब तक जिंदा हो ईमानदार बने रहो, और ईमानदार हो तो दिखो भी ईमानदार, चोर हो तो चोर भी दिखो, और मुख में राम बगल में छुरी का नियत बिल्कुल एकदम दूर कर दो। और कह सकते हो कि इस तरह भारत नहीं पूरी दुनिया एक चमन हो जाएगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।